Assalamu alaikum, this is Madiha Naseem, and this is our very first podcast of Tribe Group of Companies. We are fortunate that our today's guest is Maudud Ahmed, and he's CEO and founder of Tribe Group of Companies. We'll talk about his journey, his leadership style, how Tribe is helping with current economic situation, growth, and much more. Let's hear from him. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं क्या? अच्छा, आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड इट स्टार्ट? कैसे स्टार्ट लिया फ्रॉम फेसिंग स्ट्रगल्स टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल सीईओ विद मल्टीपल कंपनीज अंडर योर बेल्ट? Okay, so it all started back in 2003, 2004, I think. जब मैंने अपना पहला काम स्टार्ट किया था, when I started working for a BPO company in Islamabad. It all started then. So it's a long journey, but I would try and summarize it in the best possible way. When I started working, I was a student at the same time. My university was in Wakend. Wakend is the city where I belong. You belong to Wakend? Yeah. Yes. I was born and raised in Wakend. So my university, ComCerts, it was in Wakend. My workplace was all the way in Islamabad. So it was quite challenging, quite tough, but yeah, I really wanted to do it at that point in time. जिसमें अगर if I just tell you कि मेरी जो commute थी on a daily basis, it was around 2.5 hours from Wakend to to my office. Yeah, Islamabad. So I was using public transport back then. And then spending about 8 hours in the office, 9 hours in the office. उसके बाद फिर मैं वापस Wakend आता था to my university. I used to attend my classes for another few hours, then So go how back. did you manage your sleep and खाना पीना कैसे किया in between? किस तरह? Sleep तो इस तरीके से if I was fortunate, मुझे जगह मिल जाती थी बैठने की तो वो बहुत अच्छा होता था, मैं सो जाता था उसमें। अगर नहीं मिलती थी तो फिर of course I had that window of 3.5 hours every day. उसी में मैं अपनी जो नींद थी उसको पूरा करता था. It was very challenging though, to be honest. मेरी जो स्लीप का मसला, सोने का मसला था, नींद का मसला था, वो बहुत ज़्यादा था. I wasn't somebody जिसको उठाना आसान होता. बहुत मुश्किल काम था मुझे सुबह यूनिवर्सिटी के लिए भी उठाना या किसी भी काम के लिए उठाना. But when I took the responsibility, then yeah, I had to manage everything within my 3.5 hours of sleep. And it was fantastic. It was pretty good, exciting back then. Yeah. अच्छा माधुर, मुझे ये बताया कि what inspired you to start your first company? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप इसको शेप कर रहे थे as an entrepreneurial journey? Okay. When I started working in the similar industry that I'm currently working in, it was back in 2003, 2004 when I started working as a call center agent for a BPO. I actually knew the moment I stepped into that office that this is something that I would want to do in my future. वो मेरे जहन में था, एक back of the mind आ चुकी भी थी बात कि this is something that I would really wanted to do. Yes, I did my research. मैंने साथ-साथ सीखना भी शुरू कर दिया. And you're talking about your first job, right? Yeah, first job. मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब थी. मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, वो क्लियर हुआ. I was very excited. जॉब हो गई, अच्छा लग रहा था सब कुछ. Everything was doing really well. And then I actually decided, I thought and I spoke to myself कि later on down the road, inshallah, that is something that I would want to do. फिर हम कुछ टाइम और गुजरता है. Then another person joined me in the journey, Tahir Rashid. उसके साथ फिर we were in Islamabad. Tahir Rashid is the managing director and the co-founder of the company. We were discussing a lot of things back and forth together कि हमने if we really would want to do something of our own, how do we do that, how do we plan on doing that? Of course we had no funds, we had no experience, nothing. We were just new into the industry. It wasn't something which was a kind of a piece of a cake for somebody, but we were taking it that way, to be honest. So that actually led towards forming a new BPO company in Islamabad back then. I think I was working for 1.5 years or 2 years, and then I was presented with an opportunity to set up a BPO office for somebody in Islamabad. We did that. It was a beautiful office. We had the business, and we were able to form a great team.
but it was a disaster at the end of the day. Yeah, it didn't work out. One of the reasons I would say of the disasters is myself. We would go into details maybe later on, but yeah, I was one of the reasons. But we'll talk about that. Yeah, of course. Because they were, it was a beautiful office. It was right in the middle of, or in the heart of Blue Area, Islamabad. And the kind of a team we were able to form back then, it was an amazing team. So why did it fail? It failed because what went wrong? I wouldn't talk about any other thing but about myself. So yeah, I was arrogant. I was kind of immature. I was just 21, 22 years of age, and I had my own office, and everyone was like, I'm the boss. So I tried to be a boss there, not to be a leader. That actually made a lot of difference. There were a lot of things, or a lot of responsibilities on my side that I had to deliver, and I actually failed them. I wasn't able to deliver most of them, and I lost my focus for quite a bit of time. Because like I said earlier, I was pretty new into the industry myself. Just having about 1.5 year, 2 years of experience does not mean that you can actually master it and you could run the show all by yourself and you could do the wonders. No, it doesn't work like that. Maybe it does for some people, but for me, it was more of a learning for me. I was able to learn that how to behave, how to act, and how to move forward in a professional career. If I really wanted to grow, what are the do's, what are the don'ts, I was able to figure them out. Then I moved to Karachi, and I started working for TRG, currently known as IBEX Global. They are the industry leaders. We all know that. So when I started working for TRG, that is again a BPO. They're the largest BPO in Pakistan. I would say they are one of our prides. They are doing a fantastic job, mashallah, for a very long time. So yeah, I started working for them it was a bigger BPO, a huge BPO, large scale operations. Then I actually figured out that what went wrong back then, what was I should have been doing, what were the do's, what were the don'ts, and I was more focused on don'ts, and that actually helped me. I grew up within TRG over the period of 7 years, and I had an opportunity to work with some of the executive level team members in TRG, from the US office, from their UK office. I was handling one of their offices in the UK, so yeah, my immediate boss, Atif Hafiz, Stuart Morris, they actually kind of polished my skills. You still remember them? Yeah, of course. I really respect them. I respect a lot of, I have a lot of respect for them and for my ex-bosses, for my ex-colleagues, of course. But they kind of counseled me over and over again, as how do I mold myself to become a better professional later on in my career, in my future. Since, like I said, I was very much focused from the day one I started working in any company that I wanted to do something of my own. Like I mentioned earlier, एक मैंने कोशिश की थी इस्लामाबाद में, it was a disaster. उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ समझा. तो आपकी जो आधी लर्निंग थी वो उस फेलियर से थी और फिर ज़्यादा मोटिवेशन आपको IBEX से मिली कि that you should start your own thing. Like I said, I was working for TRG, and everything was perfect. Everything was too good, alhamdulillah, back then. For me, to be honest, as a professional, मेरे लिए सब चीज़ें अच्छी थी. अब मुझे 7 साल हो गए हुए थे TRG में. मैं ग्रो कर रहा था, ग्रोथ अच्छी थी. Salary was pretty good. Benefits ठीक थे. You were in your comfort zone. Yeah, I was in my absolute comfort zone. It was an extremely great comfort zone that I had. My bosses, they were too good. They never kind of micromanaged me. And they were assigning me different tasks. वो अच्छे चल रहे थे, अच्छे मैं deliver कर रहा था. Appreciations आ रही थी, सब चीज़ें ठीक थी, अच्छा चल रहा था. And I knew for a fact कि अब कुछ टाइम के बाद growth जो है वो that's there. And उसके बाद मज़ीद growth है that's there. तो वो एक रोड मैप होता है किसी भी करियर में, प्रोफेशनल करियर में, वो मुझे वहाँ पे नज़र आ रहा था. फिर before I move, I tell you more about it.
इसके बीच में जब मैं TRG आया था कराची से, सॉरी इस्लामाबाद से, जब मैं कराची आया था, आई मेट अनदर गाय, सो आई इनिशियली डिस्कस्ड अबाउट ताहिर। वो मेरे साथ इस्लामाबाद में था। जब मैं कराची आया तो मुझे यहाँ पे अब्दुल मुकीत मिले। अब्दुल मुकीत was the CIO of Tribe Consulting, and I met him in TRG. Then we started exchanging a lot of ideas. चाय के होटल पे बैठ के हम अक्सर काफ़ी सारे आइडियाज़ वो एक्सचेंज कर रहे होते थे। ताहिर हमें ज्वाइन कर लेता था वहाँ से, इस्लामाबाद से, और हम बहुत सारे आइडियाज़ के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते थे अक्सर। और ये आप बता रहे हैं आईबेक्स में रहते हो? आईबेक्स में रहते हुए अभी हमारा कुछ इरादा नहीं था कि हमने कुछ स्टार्ट करना है। वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग और यू नो वी वर जस्ट काइंड ऑफ, अगेन वी नेवर हैड, उस टाइम में हमारी इंटेंशन नहीं थी कि अभी हमें कोई इमीडिएट डिसीजन लेना है, हमने कुछ स्टार्ट करना है, कोई कंपनी फॉर्म करनी है। बट वी वुड लाइक अच्छा लगता था, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन अच्छी लगती थी। तो हमारी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर जो डिस्कशन हमारी चल रही थी, हम क्या कर सकते हैं अपने विद इन आवर पावर्स, हम क्या कर सकते हैं, मुल्क के लिए क्या बेहतर हो सकता है, कैसी चीज़ों को बेहतर लगे। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये हमारी अक्सर डिस्कशंस होती थी कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। So one fine morning I was having a good discussion with Abdul Mukeet. It was, I think, November or December 2013. And ताहिर को भी हमने कॉल पे लिया, डिस्कशन चल रही, स्टार्ट हुई, आगे बढ़ी। तो then I decided, I discussed it with Tahir and Mukeet at the same time. They both are the co-founders of the company. Yeah, let's start something of our own. I think we can start something of our own. We can start another BPO. And हमने पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सीख लिया है, समझ लिया है। जो गलतियाँ हम करते आए हैं, पहले की थी, फॉर एग्जांपल माय इनिशियल सेटअप इन इस्लामाबाद, न्यूरॉन टेक्नोलॉजीज उसका नाम था, न्यूरॉन में क्या गलतियाँ की थी वो भी हमें पता थी। फिर हमने क्या कुछ सीख लिया, हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। तो वी वर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। हमारे घर वाले नहीं थे, दे वर काइंड ऑफ शेकी कि भाई क्या करना है, प्रिपेयर्ड कि बस स्टार्ट करना है। हाँ, आई वाज एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड, वी वर प्रिपेयर्ड, या वी वर कॉन्फिडेंट कि हम कर लेंगे। So Tahir, he burned his boats, everything in Islamabad. I just called him up and I said, यार एक काम करो, and trust me, it is true. मैंने उसको कॉल की थी थर्सडे को, थर्सडे की रात को मैंने उसको कॉल की थी, और मैंने उसको कहा मुझे फ्राइडे को 12 बजे तक तुम कराची में चाहिए हो, I need you here. And he was like, okay. उसको बहुत सारे काम करने थे, उसको बहुत सारी चीज़ें करनी थी। ऑफ कोर्स ही केम एंड उसके बाद कभी गया नहीं वापस, काफ़ी टाइम तक, कई साल तक कराची में रह गए। तो बाय 12 PM ही वाज इन कराची नेक्स्ट डे ऑन फ्राइडे। एनीवेज, मैंने और मुकीत ने फिर ताहिर को जब कॉल पे लिया, हम लोगों ने डिसाइड किया, वी आर कॉन्फिडेंट, आई थिंक वी मस्ट डू दैट। उस टाइम तक ताहिर इस्लामाबाद में थे, मैंने और अब्दुल मुकीत ने हमने थोड़ी बहुत रिसर्च स्टार्ट की कि हमें कैसे करना है। देन वी फिगर्ड आउट, ओके, वी हैव द बिगेस्ट चैलेंज, एंड द चैलेंज वाज वी हैड नो फंड्स। If you are going to start your business, you got to have some funds, you got to have some money to invest, and that was our biggest challenge because we had no money. We wanted to do something, we wanted to build a company, build a business, start a business, grow a business, and we had the business plan, but we had no money. इस चैलेंज को आपने कैसे, that must be a biggest challenge obviously, funds का तो challenge, तो इसको कैसे आपने overcome किया along the way? How did you overcome this? जब हमें चैलेंज का पता चल गया, हमें पता है, ऑफ कोर्स ये तो पहली चीज़ है जो हमें पहले से पता है कि हमारे पैसे नहीं है, वी हैड नो मनी। तो लेकिन हमने काम स्टार्ट करना था, तो हम एक एग्जिस्टिंग कंपनी में 2-3-4 एग्जिस्टिंग कंपनीज थी जिनके पास ऑफिस सेटअप्स लगे हुए थे, उनके पास चले गए। कुछ न्यूज़पेपर में आर्ट्स देखे तो हम उनके पास है, जो कोवर्किंग स्पेस है काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम एक एग्जिस्टिंग कंपनी में गए, और उनसे हमने जो उनकी एग्जिस्टिंग 5 सीट्स थी वो हमने उनसे रेंट पे ले ली, और आई एम सॉरी, वो 5 सीट्स हमने रेंट पे ले ली। एंड उसमें जो छोटी मोटी सी जो आपको शुरू में पे करना होता है, डिपॉजिट एंड रेंट, वो हमने हमारी कुल मिला के जितनी जमा पूंजी थी वो उसमें ख़त्म हो गई थी उसी टाइम पे, जिससे हमने वो साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया। 31 दिसंबर को हमने साइन किया था, 1 जनवरी को 2014 को हमें
उन्होंने पोजीशन दी थी 5 सीट्स की. इट वाज सिमिलर सॉर्ट ऑफ ऑफिस, इतना ही बड़ा था, 5 सीट 200 स्क्वायर फीट, A small office. वेरी स्मॉल लिटिल ऑफिस जो हमें इनिशियली मिला, जिसमें वो 5 लोग बैठ सकते थे. और बस 200 स्क्वायर फीट भी शायद मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, मे बी उससे भी कम हो, छोटा सा ऑफिस था. वो उन्होंने बता दी है आपका कमरा है, आप यहाँ से काम करेंगे, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, सिस्टम्स लगे हुए हैं, इंटरनेट इज़ ऑन, एवरीथिंग इज सेट अप. वी वर जस्ट पेइंग देम पर सीट, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की एंड जो बाकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट थी वो हम पर सीट पे कर रहे थे. वो हमने लाइक इज मैंशन अर्लियर हमने शुरू में पे कर दी थी एज अ डिपॉजिट, एडवांस रेंट हमने पे कर दिया था. फिर 31 दिसंबर को हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उन्होंने हमें जगह बताई कि यहाँ पे आप काम करेंगे. ताहिर was kind of he has been very good with recruitment since the start. शुरू से रिक्रूटमेंट उसने बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, गूगल के लिए रिक्रूटमेंट उसने की हुई है एज अ वर्चुअल रिक्रूटर. तो ही वॉज pretty good with रिक्रूटमेंट. He said कि ओके चलो मैं रिक्रूटमेंट देखता हूँ. He hired 5 people for us while sitting in Islamabad, calling candidates here in Karachi, and he was able to shortlist a few people, and जिनमें से हमने 5 लोग हायर कर लिए. तो 1 जनवरी से उसने रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट की है. 3 जनवरी तक हमारे पास लिस्ट में जो 5-7 लोग थे शॉर्टलिस्ट हुए, फाइनल हुए, वो आ गए. 4 जनवरी को हमने ट्रेनिंग किक ऑफ करनी थी. तो 3 जनवरी थर्सडे, आई थिंक वाज थर्सडे, 3 जनवरी आई कॉल्ड हिम कि यार आप तुम आ जाओ, अब तुम्हारे फौरी तौर पे तुम यहाँ पे चाहिए हो. तो उसने कहा कि ठीक है मैं सुबह की फ़्लाइट लेके निकल आता हूँ. एंड ही केम ओवर ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद. 4 जनवरी को 5th 6th को हमने ट्रेनिंग की, और 6th की शाम को शायद हम, यानी यूएस की 6th की शाम तक हम उस प्रोजेक्ट पे लाइव हो गए थे. नाउ द प्रॉब्लम वाज हमने काम तो स्टार्ट कर दिया, 5 लोग भी हायर कर लिए, सैलरीज भी बहुत अच्छी ऑफ़र की. उस टाइम पे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चल रहा था उससे एटलीस्ट 2.5 टाइम्स ज़्यादा हमने सैलरीज ऑफ़र की. बिकॉज वी डिड आवर कैलकुलेशंस. अब जब हमने अपनी कैलकुलेशंस की, हमने देखा कि अगर हमें अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है, हमारा रेवेन्यू, हमारी प्रोजेक्शंस कहाँ पे जा रही हैं, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हम हायर करने जा रहे हैं अभी, उनको अच्छा पैकेज ऑफर करें कंपैरेटिवली, जो बाकी मार्केट से बेहतर हो और जो वो डिज़र्व करते हैं. बिकॉज दे आर स्पेंडिंग 8 आवर्स, दे वर स्पेंडिंग 8 आवर्स ऑफ देयर टाइम ऑन कॉल्स. तो वी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि हम उनको अच्छा ऑफर करें. तो हमने अच्छा ही ऑफ़र किया. वो सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमें ये पता था कि इफ़ बाय द एंड ऑफ द मंथ we were not able to generate income or the revenue, it would have been another disaster. But like I said earlier, we were confident. We knew what we were doing, we knew what we were doing. So we stayed in the office. अगले 2-3 हफ्ते तक we were kind of staying in the office. मैं अपनी गाड़ी में जाके सो जाता था, कभी ताहिर उसमें जाके सो जाता था, कभी अब्दुल मुखी जाके सो जाता था, कभी हम तीनों कोशिश कर रहे होते थे कि उसी गाड़ी में हम सो जाएं, एडजस्ट हो जाएं. बहरहाल वो हमने 2 से 3 हफ्ते काफ़ी मेहनत की. हमने एक टारगेट बनाया हुआ था कि हमें इतना अचीव करना है, इतना रेवेन्यू हमें जनरेट करना है बिफोर द 3rd वीक ऑफ जनवरी. बिकॉज हमने 1st ऑफ फेब को पेरोल जो है वो डिस्पर्स करना था, जो हमारे बाकी एक्सपेंसेस थे हमने मीट करने थे. तो यार अल्लाह का फजल रहा, हमने मेहनत की, उसने चला दिया. ये जर्नी बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्साइटिंग भी होगी, ये बहुत टायरिंग भी होगी. एक्साइटिंग, टायरिंग तो कभी भी नहीं रही. अच्छा. हाँ, टायरिंग कभी नहीं रही. एक्साइटिंग लेकिन जो ये आप बता रहे हैं रूटीन, नहीं वो उसमें अच्छा लगता है ना. टायरिंग वो है कि इफ़ आई एम टायर्ड, इफ़ आई कांट डू एनीथिंग एल्स एंड आई एम लाइक मैं थक गया हूँ. नहीं, मेहनत की जो डेफिनेशन होती है वो भी कुछ ऐसी होती है कि मेहनत इज़ नॉट समथिंग जब आप थक गए हैं, आपने कहा यार आज मैंने बहुत मेहनत कर ली है, मैं थक गया हूँ. नो, दैट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ मेहनत. मेहनत की भी डेफिनेशन ये है कि जब आप थक गए हैं उसके बाद जो आप काम करते हैं ना, दैट्स मेहनत. वो एक्चुअल मेहनत तो वो है. उससे पहले तो रूटीन वर्क है. रूटीन वर्क वेरी गुड डेफिनेशन. जब आप थकने के बाद आप काम कर रहे हैं आगे और उसको जितना आगे लेकर जा सकते हैं, दैट्स द मेहनत वाला टाइम. तो टायरिंग होता था, बिल्कुल होता था हमें, लेकिन अच्छा लगता था. एट द एंड ऑफ द डे इट वाज रिवॉर्डिंग, इट वाज चैलेंजिंग, इट वाज एक्साइटिंग, इट वाज फन. सो एवरीथिंग वाज कमिंग टुगेदर. सो या वी एंजॉयड इट अल्हम्दुलिल्लाह. तो यूँ हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई. हमारा पहला महीना जो था, 1st मंथ, वो कंप्लीट हुआ. अल्लाह ताला का फजल रहा. हमने जो टारगेट अचीव करना था वो हमने किया.
और जो एक्सपेंसेस थे वो भी हमने पे ऑफ किए टाइमली, बल्कि टाइम से पहले कर दिए। बट उसके बाद फिर हमें एक और डिसीजन लेना था कि हम उसी पेस पे कुछ अर्सा चलते हैं और उसके बाद फिर आगे ग्रोथ को देखते हैं, या अभी से हम ग्रोथ को देखना शुरू करते हैं। ग्रोथ को तो जो एक्सपेंशन प्लान था वो तो हमने शुरू से एक थॉट प्रोसेस में था। वी ऑलवेज वांटेड टू ग्रो एंड वी रियली वांटेड टू ग्रो क्विकली। तो उसमें देयर वाज नो अदर ऑप्शन फॉर अस। अगर ग्रोथ हमें नज़र आ रही है या हम लेकर आ सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, तो फिर हमने उसी ऑप्शन की तरफ जाना। तो खैर वी डिसाइडेड कि अब अभी हम 5 लोगों के साथ हमने ये 1 महीना गुजार लिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। हमने जो टारगेट्स अचीव करने तो हमने कर लिए, बजाय इसके कि हम मज़ीद 3-4 महीने वेट करें और इसको 5 की उसी पेस पे लेकर चलें। तो ठीक है, हम पैसा भी थोड़ा कमा लेते और फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं हमें एक्सपेंड करना है नहीं करना है या कब करना है, उसकी टाइमलाइन क्या होगी, ये किया जा सकता था। बट वी डिसाइडेड कि ओके, लेट्स हायर अनदर 10 seats from the Let's same take a company. risk. Yeah, let's take another risk. Another risk. Let's add a payroll of another 10 people at a higher rate, and at the same time hire 10 more seats from the existing company. Add a lot of more pressure on ourselves. This is what we wanted to do, and we did that. हमने 1st of Feb से पहले ही कंपनी जो जिस जगह पे हम काम कर रहे थे उनको बोला गया अभी आपने हमें छोटा सा रूम दिया है, 200 स्क्वायर फीट का आपका बड़ा बाहर अच्छा बड़ा हॉल है, हमें वो नज़र आ रहा है, हमें वहाँ पे जाना है, आप हमें वहाँ पे जाने दें। एंड दे वुड लाइक यार आप तो 5 लोग, हमने कहा नहीं अभी हम 10 लोग और हायर कर रहे हैं, तो वी वुड बी अ टीम ऑफ 15 पीपल, वी कैन नॉट हम इस 200 स्क्वायर फीट वाले ऑफिस में पूरा नहीं आ सकते। They agreed. They said, okay, if you're expanding, you're giving us more money, why not? The floor is yours. फिर हमने 1st of Feb को मज़ीद हायरिंग स्टार्ट की। हमने बहुत तेज़ी से हायरिंग की, तेज़ काम किया। ऑफ कोर्स हमें एक दिन जो था, एक घंटा जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि अब हमने देखना था कि हम 28 Feb से पहले अपने एक्सपेंसेस को कैसे मीट कर सकते हैं, जो कि हमारे 3 times हैं। यानी कि फर्स्ट मंथ को अगर आप कंपेयर करें सेकंड मंथ से, तो हमने डायरेक्टली अपने एक्सपेंसेस में 3 times का इजाफा कर दिया था। और अभी हमारा सेकंड मंथ इन बिजनेस, फ्रॉम 5 to 15 इट वाज अ क्विक जंप राइट देन एंड देयर। तो हमने जल्दी हायरिंग की, अच्छी हायरिंग की, अच्छा हमें टैलेंट मिला, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग मिले काम करने के लिए। ट्रेनिंग्स हम इन हाउस कर रहे थे। ताहिर वाज अ ट्रेनर, ही इज अ गुड ट्रेनर, सो ही वाज अ ट्रेनर, he was a recruiter, he was a trainer, he was an HR guy, he was, I don't know, multi-talented. Mukeed was MIS, Mukeed was doing everything and I was doing nothing. I was like anything. You were leading them. उसने जल्दी से ट्रेनिंग कंप्लीट कराई, फास्ट ट्रैक पे रखते हुए, ताकि हम इन लोगों को जल्द से जल्द जो है प्रोजेक्ट के ऊपर लाइव कर दें और हम इनको टाइमली बिल कर सकें अपने कस्टमर्स को, और ताकि हम उसके जो रेवेन्यू है वो अपने इनकम के अंदर ऐड कर सकें और बाय द एंड ऑफ द मंथ हमें शर्मिंदगी नहीं हो, हम उस पोजीशन में नहीं आ जाएं। And further to grow more. Yeah, of course, and we never wanted to be in that position where we had to tell our, जहाँ पे हम पेबल्स हैं वहाँ पे हम उनको बोलें यार अभी हम नहीं कर सकते, अभी हम नहीं दे पा रहे। We never wanted to be in that situation at all. So we had to give all it took at that point in time to the business to make sure we were able to generate enough income by the end of the month in February 2014. तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा, वो भी अच्छा रहा महीना। टीम भी अच्छी तैयार होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, 15 लोग हो गए, एक्सपेंड कर दिया। March में we repeated the similar story and then we repeated it again in April, and we kept on doing that until today. So the entire growth of Tribe Consulting is based on an organic growth model. There was no investment that we had. No, there was no investor with us. Of course, we never wanted to include an investor. We just wanted to do everything by our own because we wanted to take our own decisions, जिनको हम खुद से बैक भी कर सकें, खुद से उसको अच्छा साबित भी कर सकें, ठीक डिसीजन भी साबित कर सकें। मैंने आपको 2-3 डिसीजन बताए, बहुत सारे और डिसीजन हैं जिनको कोई भी अक्ल रखने वाला बंदा सुनेगा तो कहेगा यार How did it happen? ये क्या किया? The first reaction would be no, it is not possible. The first reaction would always be like that in many of our decisions. But ठीक था, क्योंकि हमने अपना काम कर रहे थे, अपने तरीके से कर रहे थे, and we just wanted to make sure कि हम जो ग्रोथ है उसको पकड़ के रखें और वो उसके साथ साथ अपने आप को पेस अप करें। ग्रोथ नज़र आ रही है, हमें डिमांड पता थी, इस इंडस्ट्री की डिमांड हमें पता थी, सप्लाई हमने मेक श्योर करनी थी।
अपने एंड पे, और जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, at the end of the day they were paying for the services. We wanted to make sure they are getting that delight factor. They are actually they are as exciting as we were for the growth, because at the end of the day we were representing their brand. So yeah, they were very happy. They tried doing it in-house. At the end of the day, it's a win-win situation. Yeah, it's a win-win situation, and they were very happy. The best part is they were absolutely very happy, and they said, okay, we would want to grow more with you. Let's add more people, and we kept on adding people. Currently, आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? अपना जो है वो count बताएं, employee count. Our employee count is around 1,500 plus. We should be 1,800 by mid-March, and we should be able to double our size by the end of the year. We do have the schedule, we do have the contracts in place, we do have business alhamdulillah in hand, so we should be able to double our current size by the end of the year. उसके लिए हमने पहले से तैयारी कर लिया. We can talk more about our locations, वो कहाँ पे हैं उसके ऊपर हम बात कर, मैं आपको एक सेपरेट क्वेश्चन में उसका आंसर कर दूंगा. बट ये हमने उसकी तैयारी कर ली हुई है, एंड वो लुकिंग टू ग्रो और डबल आवर साइज इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द ईयर. वी आर वेरी फोकस्ड एंड वी विल बी एबल टू गेट देयर इंशाल्लाह ताला. मौदूद, आप हमें BPO इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे. हाउ डज इट वर्क एंड हाउ ट्राइब इज हेल्पिंग इन with current economical situation? Okay, if I talk about the industry in Pakistan, BPO industry in Pakistan, so I would call it a blessing, to be honest. क्योंकि बड़ी important चीज़ है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है. अभी हम जो करंट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमारे पास इंपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है. जब आपके मुल्क में पैसा कब आएगा? आपके मुल्क में पैसा तभी आएगा, बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर होगी जब एक्सपोर्ट्स आएंगी या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स एंड दिरहम्स एंड पैसे जो है पाकिस्तान में रवाना करेंगे. तो ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक एडिशनल इनकम है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर शामिल होगी. BPO I would say, okay, before I explain this, ये idea भी जो था basically when I started working for my first ever company in Islamabad, तभी ये click किया था. और उसकी click करने की reason भी यही थी कि we're bringing jobs to Pakistan at the end of the day, and we're bringing money. This industry is bringing money to Pakistan, which was never there. The money which was not printed in Pakistan. I can explain it a little more for a layman person, एक आम बंदे को समझने के लिए. इसको यूँ समझने के एक बिजनेस है, US में है या UK में है, पाकिस्तान से बाहर है. उस बिजनेस में एक सेलर है, एक बायर है. सेलर अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है या सर्विस बेच रहा है. बायर या तो प्रोडक्ट खरीद रहा है या सर्विस परचेज कर रहा है. तो बायर ने जो फंड्स अब उस प्रोडक्ट या सर्विस को रेस करने के लिए ख़रीदने के लिए जो रेस किए या जो उसने इन्वेस्ट किए या जो उसने पे किए, वो उसने वहीं पे कमाए थे. वो पैसा वहीं पे प्रिंट हुआ था, वहीं पे उसने कमाए थे. उस बिज़नेस को दिए, जो बिज़नेस उसी से वहीं पे रहते हुए उसी कस्टमर से ट्रांजेक्शन कर रहा था. हमने क्या किया, हमने उस बिज़नेस को सर्विसेज दी और अपने हिस्से का एक चंक है सेंट्स में या डॉलर्स में या किसी भी वॉल्यूम में, वो हम पाकिस्तान ले आए. जब हम पाकिस्तान लेकर आए तो ये शामिल हो गया उस पॉट के अंदर जिसमें पूरे पाकिस्तान का पैसा मौजूद है. यानी कि हम अगर कोई लोकल बिजनेस भी यहाँ पे करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो हम आपस में कर रहे हैं, वो ये पैसा रुपया यहीं पे घूम रहा है. आपने मुझे दे दिया, मैंने इनको दे दिया, उन्होंने उनको दे दिया, यूँ वो रिवॉल्व हो रहा है. लेकिन बाहर से जो एडिशनल आ रहा है वो है दैट मेक्स द डिफरेंस. तो BPO में ये है कि आप यू कैन ऐड योर 2 cents by exporting more of your services. If you're able to export more of your services to the customers in the US or UK or maybe somewhere else, then at the end of the day you are helping Pakistan and bringing that money which was never there. It never existed in Pakistan. That makes a huge difference. Yeah, it does, because वो कभी प्रिंट ही नहीं हुआ ना. वो पैसा तो पाकिस्तान में प्रिंट ही नहीं हुआ. अब वो पाकिस्तान आ गया है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हिस्सा बन गया है. चले एज अ कंपनी वो पहले हमारे पास आया. हमने उस पैसे को, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मेक श्योर की ये बाकी सारी कंपनीज में यूँ ही करती हैं जैसे हम करते हैं. हमने उसमें से जो रेंट्स हैं फॉर एग्जांपल वो पे की, तो रेंट वाले को उसका हिस्सा मिल गया.
हमने इलेक्ट्रिसिटी के पे किए, बिल्स पे किए गवर्नमेंट को, और इन सप्लाई जो कंपनीज हैं जो हमें एनर्जी सप्लाई कर रही हैं या सर्विसेज सप्लाई कर रही हैं, उनको उनका हिस्सा मिल गया। इंटरनेट की कंपनीज को उनका हिस्सा दे दिया। जो वेंडर्स हैं जो हमें पानी पिलाते हैं यहाँ पे, जो चाय वगैरह पिलाते हैं, उनको हमने उनका पैसा दे दिया। जो सैलरीज हैं हमने इसी तरीके से बाकी जो वो सैलरीज में दे दिए, कुछ अपने प्रॉफिट्स क्लेम कर लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे a chunk of money which was never there in Pakistan, it never existed. Now वो पाकिस्तान आ चुका है, अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, एंड जस्ट इमेजिन उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है कि उससे कितने ज़्यादा सिर्फ ये एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। ऑफ कोर्स वो जो पैसा पाकिस्तान में आ चुका है, अब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, आपने जहाँ पे जगह ली हुई है, जो ऑफिस लिया हुआ है, आप उसका रेंट पे करें। वो इसी तरीके से आप जो कंजप्शन कर रहे हैं, जो आपका सर्कल है वो बढ़ जाता है। तो it really helps. तो BPO को I would say it's a blessing. It's something which is very very important. पाकिस्तान के एस्पेक्ट से बहुत ज़रूरी है। हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाना है। हमारे यहाँ कुछ टाइम से एक रुझान चला है, कुछ सालों से चला है, और ख़ासतौर पे पोस्ट कोविड या विद इन कोविड इसकी तरफ ज़्यादा रुझान आ गया था। वो फ्रीलांसिंग है। एंड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई फाइंड आउट कि पीपल they are trying to be self-sufficient. Students, they are trying to be self-sufficient. They are trying to export their services to the customers who really need them. Maybe they are sitting somewhere else. It's a virtual world. At the end of the day, the BPO sector, it's अब जो कि पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करें, तो BPO में हम ये भी करेंगे, हम जो लोकल कस्टमर्स हैं उनके साथ काम करें, which is very good. But एक्चुअल में जॉब क्रिएशन, वो जॉब जो पाकिस्तान में थे ही नहीं, अब क्रिएट भी जो पैसे पहले पाकिस्तान में पैसा था ही नहीं, अब आ गया। वो जब आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से आता है। तो एट द एंड ऑफ द डे BPO सेक्टर इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान। जिस तरह की सिचुएशन में अभी हम चल रहे हैं, अभी फिर से IMF के पास जाना है, फिर से डॉलर फ्री फॉल पे आना है, फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जानी है। अल्लाह ताला बेहतर करे, लेकिन ये हमें नज़र आ रही है आगे कुछ ऐसे कुछ होने जा रहा है। तो इसमें हमारी जैसी कंपनीज जो कि आउटसोर्सिंग में या एक्सपोर्ट्स के ऊपर, सर्विस एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं, वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और अगर हम जैसी कंपनी ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो करती हैं, और बाकी कंपनीज भी इंक्लूडिंग आवर कंपनी, अगर हम तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं पाकिस्तान में, तो वो कहीं ना कहीं हम अपने 2 सेंट्स ऐड कर रहे हैं इस इकॉनमी में, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। एंड आई टेक दैट एज अ कॉज। It actually is a cause at the end of the day, and we take it very seriously. अच्छा, ये तो अब आपने बात की BPO की। हम आते हैं लीडरशिप की तरफ कि ऑब्वियसली लीडरशिप जो है उसके बगैर तो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। तो लीडरशिप स्टाइल के बारे में, लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या लीडरशिप स्टाइल्स या क्वालिटीज़ ज़रूरी होती हैं टू मैनेज दिस ऑल। सबसे पहले डिफरेंस तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ बॉस। इफ समवन इज ट्राइंग टू बी अ बॉस, it wouldn't help. It may help in a short term period के लिए, हमें उसमें शायद उसको या उससे रिलेटेड जो भी कॉज है वो उसमें हेल्प मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती, या लॉन्ग टर्म अचीव आप उससे कुछ नहीं कर सकते। इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी अ लीडर ऑन द अदर साइड, यस यू कैन अचीव मोर एंड मोर, बिकॉज लीडर जो है वो टीम लीड करता है। टीम इज ऑलवेज टुगेदर, एवरीवन अचीव्स मोर। वो यही बताता है कि वी नीड टू वर्क एज अ टीम। सो इफ आई एम अ लीडर, आई एम अ पार्ट ऑफ अ टीम एट द सेम टाइम, तो हमें मिल के काम करना है। दैट दिस इज व्हाट अ लीडर should do, versus a boss जो कि group of people के साथ काम करता है। A group of people or a team of people, there is a difference, a huge difference. So when I say together everyone achieves more, which defines team, that actually should be a point of a concern or point of a focus for any leader at the end of the day. Leader should place enough confidence and trust in his or her team or teams at the end of the day, because if I've hired somebody, for example, and if I'm not putting my enough trust on him or her, at the end of the day, it's of no cause, it's of no use, because if I've hired somebody for some job, I am definitely sure that that person is much capable of handling and executing that job better than I do, better than myself. If I would do it, I would do it. I wouldn't do it right. I wouldn't do it well, because I wasn't trained for it. Number one, I never studied.
maybe I would know a little bit about it from the experience, लोगों को देख के मुझे कुछ सीख लिया, लेकिन मैं वो काम तो नहीं कर सकता ना, तो मुझे उस काम के लिए जो एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जो हायर हुआ है, तो मुझे उसके साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल बनाना पड़ेगा। मुझे पहले से उसके ऊपर पहला कॉन्फिडेंस तो मुझे यही है, मुझे कि मैंने उसको हायर किया है एक काम के लिए, एक जॉब के लिए, तो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि दिस पर्सन कैन डिलीवर, एंड देन ऑफ कोर्स मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट करना है कि हाँ, आई वुड हैव हिम और हर डू थिंग्स देयर वे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स मैटर, और रिजल्ट्स जो हैं वो आने चाहिए, रिजल्ट्स मैटर करते हैं। जहाँ पे कहीं पे उनको लगता है प्रॉब्लम आती है, तो या दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वहाँ पे जंप इन करूँ, वहाँ पे बात करूँ, समझूँ प्रॉब्लम को, समझूँ जो रोड ब्लॉक्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ, जो चैलेंज है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वुड रियली वुड वांट टू एनेबल दैट पर्सन टू डू द जॉब द वे ही वांट्स टू डू इट. So yeah, trust and confidence, I would say, they are very important in your people. When you're talking about leading, then you're leading people, and when you're talking about leading people, then people management वो ज़्यादा important हो जाएगी कि उनको कैसे आपको बहुत से लोग वैसे आपको भी लीडर मानते हैं, obviously you are a leader. हमने आपके बारे में बहुत सुना भी है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि what principles do you follow? लोग आपको किस तरीके से देखते हैं और आप क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी इस क्वेश्चन से पहले, किसी क्वेश्चन में मैंने बताया था शायद आपको कि आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ कंपनी इन इस्लामाबाद. आई मीन इट्स समथिंग दैट वी वर एबल टू सेट इट अप इन ग्लो एरिया. तो वहाँ पे मैं अगेन आई वाज नॉट द लीडर बट द बॉस. आई वाज द बॉस देयर, एंड एवरीवन वाज एक्चुअली लुकिंग अप टू मी, but as a boss, not as a leader. I was arrogant. I think I did mention that earlier. Exactly. I wasn't. I was never supportive to my people who were actually looking up to me, and they wanted help. They wanted me to guide them through me. They wanted me to help them with their journey, with their career. They wanted me to train them on certain things. And the list goes on and on. But yeah, I was a boss back then. I was arrogant. I was like, no, I'm the boss. I have my own cabin. You do your work. I'm doing my work. You take your salary. I'm taking my salary. You go home. I go home happily. Bossy. I was Bossy pretty. nature. I was kind of that. Yeah. So that's the reason वो चली नहीं 3 महीने 6 महीने के अंदर. It didn't really work out. वहाँ से एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि that's not the style of management. If that is the style of management, तो वो उस जगह पे काम करती. बिजनेस था, काम था, ऑफिस था, अच्छा सेटअप था, अच्छी टीम फॉर्म हो चुकी थी, तो काम करनी चाहिए थी. लेकिन अगर वो उसने काम नहीं किया तो गलत था, वो ठीक नहीं था, वो तरीक़ेकार ठीक नहीं था. तो उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है. और अगर लीडर बनना है या लीड करना है, आई वुड से अगर लीड करना है तो पहले तो ऑब्जेक्टिव पता हो कि पहुंचना कहाँ पे है. फिर जहाँ तक पहुँचना है तो वो जिनके सहारे पहुँचना है, जिन लोगों के सहारे पहुँचना है, जिनको साथ लेकर पहुँचना है, तो उनको भी समझना पड़ेगा कि वो जो हैं उनके स्किल सेट्स क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं. ठीक है. और जहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को और विजन को यूज़ करके रास्ते को क्लियर किया जा सकता है, वो वहाँ पे क्लियर किया जाए. एंड यू नो योर गोल, योर डेस्टिनेशन, एंड दैट इज मच ईजियर. Yeah, that's easier. That's much easier. I mean, that's the way to go. Exactly. I don't know. I wouldn't get enough satisfaction if I was a boss. I wouldn't get enough satisfaction. If I'm a leader or if I'm leading a team, I wouldn't call myself a leader. But if I'm leading a team, at the end of the day, and I am able to deliver what was expected of me, and people around me who were working with me on any specific project. They were happy. They had the last smile on their face. That would make me satisfied, or I would say yes, I accomplished something. This is something that I achieved through a leadership style or a management style or whatever you want to call it. अच्छा, ये बताएं कि 200 स्क्वायर फीट से, जो कि लिखा हुआ भी है, मेंशन भी है कि आपने 200 स्क्वायर फीट से 100,000 स्क्वायर फीट तक ऑफिस स्पेस जो है वो वहाँ तक पहुँचे, तो कितना टाइम लगा आपको यहाँ से 200 से 100,000 तक पहुँचने में? From 200 square feet of office space से 100,000 square feet of office space तक की जर्नी बहुत मज़ेदार है. It is full of excitement, full of fun and full of challenges. Because like I said, हमने जब काम स्टार्ट किया था तो
वो हमारा ऑफिस नहीं था, वो एक एग्जिस्टिंग ऑफिस था किसी कंपनी का। हमने उनसे जाके बात की, उनका ऐड भी था उसके ऊपर। हमने उनसे बात की आप हमें अपने एक छोटा सा कमरा दे दें, 5 सीटें उसमें दे दें, हम काम कर लेंगे। यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था। तो फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जब हम उसी ऑफिस के अंदर ग्रो कर रहे थे तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि यार इस बिजनेस में तो ये अच्छा ग्रो कर रहे हैं। दे वांटेड टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन यू नो इन द सिमिलर इंडस्ट्री, एंड दे सेड कि अब आपको जो है यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम आवर ऑफिस। तो हमारी जो अरेंजमेंट थी शुरू की, जिसमें हम सीट्स पर सीट रेंट पे कर रहे थे, एंड एवरीथिंग वाज मैनेज्ड बाय देम, यू नो पीसी उनके सिस्टम्स उनके थे, इंटरनेट था उनका, फायरवॉल्स, whatever, everything was there. We didn't have to invest in it. But फिर then there was a time जिसमें हमारी टीम में खास उस टाइम टीम का साइज 35 या 40 था, फिर हमें खुद से सेटअप करना था। Then we started our first ever office चाराई फैसल पे हमने लिया, जगह ली, उसको बनाया। It was very challenging because हमें वो टाइम ही नहीं था। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था और कहते 1 महीने के अंदर आप कर लें, और 1 महीने में हमें एक पूरा नया ऑफिस सेटअप करना है। जब हमने जेबें देखी तो खाली थी, वी वर एम्प्टी पॉकेट्स, बिकॉज हम जो कमा रहे थे वो लगाते जा रहे थे, उन्हीं को पे कर रहे थे, उसी कंपनी को मजीद सीट्स एक्वायर कर रहे थे एट द सेम टाइम। तो you know when we looked into our pockets, it was, you know, the pockets were absolutely empty and we had no money again to invest, but ऐसे भी करके कुछ इन्वॉइसेस का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, हम 1 मंथ के बाद इन्वॉइस कर रहे थे, उसको हमने जल्दी करना शुरू किया, कुछ उधर से मैनेज करना स्टार्ट किया। बट it was full of fun, like I said, it was very exciting and challenging. उस जगह ऑफ कोर्स नया ऑफिस सेटअप करना, आपको खुद सब चीज़ें खुद से सेटअप करनी है। हमने चेयर्स भी लेकर आनी है, हमने फायरवॉल भी लेकर आनी है, आईटी का पूरा सेटअप करना है, हमें कंप्यूटर्स चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी बैकअप चाहिए। कराची में आप कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ पे कराची में पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग के मसाइल हैं, और हम वी कुडंट अफोर्ड कि हम काम कर रहे हैं और लाइट का कोई प्रॉब्लम आ जाए। इसी तरीके से इंटरनेट हम एक कनेक्शन पे रिलाई नहीं कर सकते थे, वी रियली हैड टू हैव मल्टीपल। तो हम उसी सोच से वो बेस बनाने के ऊपर थे कि हमें आज ही इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। अगर मैं दूसरी तरीके से सोचूं तो शायद हम उस टाइम पे ये सोच सकते थे यार पैसे तो है नहीं, तो बस गुजारे लायक अभी हम काम कर लेते हैं, बस ये कर लें वो कर लें, इस तरीके से थोड़ा बहुत जिस तरीके से हम अपने काम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बहुत सारी चीज़ों में काम को लेके आगे चल लेते हैं। लेकिन लाइक आई सेड अर्लियर कि हम रहते रहे, हमारा दिमाग ही कुछ ऐसा रहा कि हम रिस्क पे रिस्क लेते रहे। तो ये एक और रिस्क हमने लिया, और इसमें ऑफ कोर्स हमें कुछ हमारे वेंडर्स थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। लाइक जनरेटर के लिए, बैकअप जनरेटर के लिए हमें सपोर्ट मिल गई। उन्होंने कहा आप स्टार्ट करें, हम आपसे 3 मंथ्स के बाद बिल करेंगे। हमें पीसीस के लिए डेल के डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल साथ वाले ऑफिस में थे, उनसे बात की, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया, लेकिन हमने किया वही जो हमने सोचा हुआ था, हमने उसी तरीके से करना था। लैपटॉप्स इस वजह से क्योंकि ताकि शेयर्ड मॉडल नहीं हो, सिस्टम सेम पीसी आपका पता है, वो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ जब शेयर करते हैं उसकी परफॉर्मेंस भी रह जाती है, फिर पावर बैकअप्स के भी मसाइल थे। तो वी जस्ट वांटेड टू प्ले स्मार्ट, तो हमने लैपटॉप्स ही शुरू से तमाम अपने एम्प्लॉयज़ को दिए थे। इसी तरीके से बाकी इक्विपमेंट भी था, वो भी अच्छी टॉप क्वालिटी इक्विपमेंट था जो हमने लिया था। वहाँ से हमने स्टार्ट लेके फिर बढ़ते शुरू में आई थिंक बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमारे पास जो टोटल ऑफिस स्पेस थी, इट वाज अराउंड 4000 स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस। सो फ्रॉम 200 to 4000 इट टुक 1 year, बट फ्रॉम 4000 स्क्वायर फीट टू 100,000 जो कि हमने अचीव कर लिया था इन 2022, it took another 7 years। बाकी जो 7 years हमने अचीव किया है, हमने अपनी लोकेशंस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया है। अच्छा, अपनी करंट लोकेशन के बारे में जी बताइए कि कहाँ आप लोकेट कर रहे हैं और आपकी क्या क्या बिजनेसेस हैं? पाकिस्तान के अंदर हम कराची में हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। कराची में है, इस्लामाबाद में और लाहौर में है। कराची में हम तारिक रोड पे हैं। अगेन ये काफ़ी जिसे कह सकते हैं काइंड ऑफ अ सेंटर ऑफ द सिटी है, गुड लोकेशन आई वुड से। अल्लाह वाली चौरंगी काफ़ी फेमस है, यहाँ का मैकडोनल्ड्स काफ़ी फेमस, और तारिक रोड तो है ही फेमस। तो तारिक रोड पे हम, कराची में तारिक रोड पे हैं। वी हैव 4 फ्लोर्स हियर। इसके बाद हम इस्लामाबाद में अवेक्यू ट्रस्ट में हैं। अवेक्यू ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स जो है अगेन अ वेरी गुड लोकेशन, मेरियट होटल के बिल्कुल साथ है, रेड जोन में आता है।
उसमें हमारे मजीद 3 ऑफिसेज हैं, उसी बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स हैं हमारे पास। एंड देन वी एक्वायर्ड द एंटायर बिल्डिंग इन लाहौर, मॉल रोड के ऊपर है। अगेन मॉल रोड लाहौर के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन मॉल रोड है। तो हमने अपनी लोकेशंस जो है वो ऐसी ही चूज़ की जिसमें हम शहर से बाहर नहीं हमें जाना पड़े, या हम ऐसी जगहों पे नहीं जाएं जहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो उनको कम्यूट करने में आसानी, at the end of the day उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, मुश्किल हो। एंड वी वांटेड टू स्टे इन द सेंटर ऑफ द सिटी। ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव होता है, कॉस्ट वाइज ज़्यादा होता है, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे हम तो करते ही ऐसे आए हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क अपने ऊपर डाल के और उसके मुताबिक ही बाकी मेहनत हम आगे लेकर चलते हैं। ये तो आपने बताई पाकिस्तान की लोकेशंस, इंटरनेशनली आपकी क्या क्या लोकेशंस हैं? जब हम 2016 में थे, 2016 में थे, हमें काम स्टार्ट किए हुए 2 साल हुए थे। उस टाइम हमने एक और डिसीजन ले लिया। हमने सोचा कि यार अब हमें पाकिस्तान से बाहर यानी ग्लोबल फुटप्रिंट्स उसके ऊपर काम करना है। ताहिर एंड मुकीद दे वेंट टू फिलीपींस, उन्होंने वहाँ पे फिलीपींस में हमारा ऑफिस सेटअप किया। उसके बाद फिर दुबई में हमने सेटअप किया, दुबई में जस्ट सेल्स ऑफिस। फिर यूएस के अंदर हमारी काफ़ी एक्सपेंशन हुई है मुख्तलिफ बिजनेसेस की, तो यूएस में हमारी प्रेजेंस है। एंड देन रिसेंटली इन नवंबर 2022 हमने कोस्टा रिका में एक ऑफिस सेटअप किया है जो माशाल्लाह लाइव है। वहाँ पे देयर आर पीपल वर्किंग एवरी डे एंड वी आर एक्सपेंडिंग इन कोस्टा रिका। सो ओवरऑल पाकिस्तान, फिलीपींस, दुबई, US and Costa Rica. पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद. Another office is another location is on its way. Location finalized है, हमने सब चीज़ें कर ली हुई हैं. We would announce it in about couple of months time. It's just another facility in another city, so that we are able to attract talent from there, from within that city. टैलेंट की जब तक हम बात जहाँ तक करते हैं, तो क्या टैलेंट आप देखते हैं कि दैट इज़ सूटेबल फॉर ट्राइब? कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? श्योर, तो हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं भी हर टाइम। वी आर ऑलवेज हायरिंग। BPO कोई भी होगा, दे आर ऑलवेज हायरिंग, सो वी आर ऑलवेज हायरिंग। BPO के साथ चूँकि हमारा एक और बिजनेस टेक में भी हम हैं, कोडिंग की, आई टॉक मोर अबाउट द अदर कंपनी, बट उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स ट्राइब कंसल्टिंग की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। ट्राइब कंसल्टिंग में मोस्टली जो हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कॉल्स के लिए चाहिए होते हैं। कस्टमर्स दे आर ऑल इन द US। हम कस्टमर सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, सेल्स हम नहीं कर रहे। सेल्स के ऊपर हमने काम नहीं किया, हम कस्टमर सर्विसेज के भी काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसे ही रिसोर्सेज चाहिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिनका एक्सेंट, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, बेहतर हो। बाकी तो ऑफ कोर्स हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन करते हैं उनको, लेकिन ये कि उनके अंदर खुद से ये बेसिक स्किल्स हैं, ये होनी चाहिए। डिग्री होल्डर होना ज़रूरी है या फिर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं? ये स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। आई एम अ ड्रॉप आउट माई सेल्फ, सो आई वुडंट से कि डिग्री ज़रूरी है। तो पहले तो मुझे अपनी डिग्री जमा करानी पड़ेगी, विच आई डोंट हैव। तो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए हमने काफ़ी टाइम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, स्टूडेंट प्रोग्राम। आई वुड वांट टू टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट द स्टूडेंट प्रोग्राम। इट वाज फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। मैंने आपको शुरू में जिस तरह बताया, मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो वाकंड में थी और ऑफिस इस्लामाबाद में था। 2.5 घंटे की कम्यूट थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो आपने पर्सनली बेसिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है? जी, मैं ये समझ रहा था उस टाइम पे कि काश मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती जो कि पार्ट टाइम होती, 4 to 5 आवर्स होती, थोड़े से फ्लेक्सिबल आवर्स होते, तो मैं ईजिली मैनेज कर पाता शायद दोनों को। मैंने किया मैनेज फिर भी, लेकिन मैं शायद आसानी के साथ मैनेज कर पाता। मुझे वो चैलेंजेस समझ में आए कि एक स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है, और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उस टाइम मेरे साथ भी थे, जो कि जिनको चाहिए, दे नीड फंड, दे नीड टू बी एबल टू फंड देयर ओन एजुकेशन, देयर ओन एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरे जैसे बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स थे। मैंने थोड़ी हिम्मत की, मैं इस्लामाबाद निकल गया, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। तो ठीक है, मुश्किल था, बट I tried doing it and it worked for me, but it didn't work for most of the people because they had no other opportunities for them. I had an idea, तब से एक thought process था कि if I would do something of my own, I would do something for the students specifically, ताकि उनको सपोर्ट किया जा सके। तो हमने स्टूडेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 2015 से शायद या 2014 के बाद ही हमने स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से काफ़ी बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएट करके गए हैं, उन्होंने अपने पूरे 4 साल की डिग्री यहाँ पे कंप्लीट की है, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। आज वो माशाल्लाह
अच्छी पोजीशंस पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, कुछ बाहर जा चुके हैं, कोई दुबई में है, लेकिन उन्होंने अपनी डिग्री का पूरा टाइम, most of them they stayed with us for every day, for not every day, like 5 days a week for 4.5 hours. अब हमने इसको डिज़ाइन भी कुछ इसी तरीके से किया है कि हमने बेसिकली शिफ्ट्स बनाई हैं उनकी, उसको ये ध्यान में रखते हुए बनाई हैं कि एक बच्चा है, वो सुबह उठा, उसने यूनिवर्सिटी गया, उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, 3 बजे वो फ्री हो गया, उसी हालत में मतलब उसी फ्लो में वो ऑफिस आ जाए, 4 साढ़े 4 5 घंटे जो उसका टाइम है वो काम करे। अगेन हम उनसे सेल्स नहीं करा रहे, कोई टारगेट उनके पास है नहीं, तो इसलिए कोई मेंटल प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। तो वो आए, 4 से 5 घंटे काम करते हैं और उसके बाद घर गए और सो गए, और ये रिपीट साइकिल रिपीट हो गया, तो आसान हो गया। दूसरा हमने ये बनाया है कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं, आप सुबह 3 बजे उठ जाएं, 2:30 बजे उठ जाएं, आप जल्दी सो जाएं, 2 ढाई 3 बजे 4 बजे आप उठ जाएं, तो उसके बाद की शिफ्ट्स हैं वे, यानी आप घर से निकले तैयार होके यूनिवर्सिटी के लिए, पहले आप ऑफिस आ गए, ऑफिस में आके आपने काम किया, उसके बाद आप सीधा चले गए यूनिवर्सिटी, और वहीं से आप घर चले गए। तो ये जो फ्लो बनाया है उसके पीछे थॉट प्रोसेस था। एंड हमने मेक श्योर किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम वीकेंड्स पे काम करवाएं। उसके पीछे भी एक रीज़न है, वीकेंड्स पे काम कराने की वजह ये कि ताकि उनको वीकडेज में जब उनकी पढ़ाई है 2 दिन उनको रिलैक्सेशन मिल जाए, ताकि वो अपनी स्टडीज़ के ऊपर जो फोकस उनको करना, उनको पता है कि नाउ वीकेंड्स आर नॉट देयर फॉर मी टू कंप्लीट माय असाइनमेंट, सो वो शायद अपना वीकेंड का जो टाइम है, जो टास्क है, वो वेडनेसडे को, जिस दिन उनकी ऑफ है, उनको बिफोर हैंड पता होता है उनकी ऑफ कब है, या फ्राइडे को है, या थर्सडे को है, या व्हाटएवर 2 डेज, तो वो उन दोनों में मैनेज कर सकते हैं। Very good plan, very good program. And then alhamdulillah, it's really working out for us. So I mean, we've been able to add a lot of students, and we still have a lot of them with us. और अच्छी बात ये लगती है कि जब वो ग्रेजुएट कर लेते हैं, जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, और फिर ईदर दे ग्रो विद अस विद इन द सेम कंपनी, और दे मूव आउट, मे बी अपने करियर में अगर कोई प्रोग्रामर है उसको उस साइड पे जाना है, कोई किसी ने मार्केटिंग पढ़ी हुई है उसको MNP के लिए मार्केटिंग करनी है, मल्टीनेशनल कंपनी MNC के लिए मार्केटिंग करनी है, किसी ने HR पढ़ा हुआ है, किसी ने फाइनेंस पढ़ा, उसको बैंक में जाना, wherever they want to go, they can, either ways it helps। साथ क्योंकि वो बच्चे होते हैं जब आते हैं यहाँ पे, तो उनको एक प्रोफेशनल कल्चर और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, वो उससे उनकी वाबस्तगी अच्छी हो जाती है पहले से, उनकी एक अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। जब वो अपनी फील्ड से पढ़ाई से रिलेटेड फील्ड में उतरते भी हैं तो उनको हेल्प मिलती है। यही हमें फीडबैक मिला है अपने एक्स एम्प्लॉयज़ से, जो कि यहाँ पे पहले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहीं और जाके जॉब स्टार्ट की। आई मेट अ गाय who used to work for us here in Tribe Consulting. I met him in Dubai. मैं दुबई मॉल में था, तो वो सामने से आ गया, मैं नहीं पहचान पाया उसको, ऑफकोर्स मैं उस टाइम था नहीं, लेकिन उसने पहचान लिया, उसने तो दिस इज़ द फीडबैक ही गेव मी कि since you had this opportunity for people like us in your company, I was able to complete my graduation. I was able to earn enough funds, को हम पैसे सही दे रहे हैं कंपैरेटिवली, अगर एक स्टूडेंट के लिहाज से देखा जाए तो सैलरीज हमने उसी के मुताबिक, so they can easily fund their studies and they could at the same time pay some of the bills, maybe घर के कुछ मोटे कोई बिल्स भी पे कर सकें, तो एक हेल्पिंग हैंड भी वो हो सके। Okay, how do you foster innovation and creativity within your companies to stay ahead in competitive markets? Innovation तो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आगे रहना है तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे टूल्स उनको तो यूज़ करना ही करना है। अच्छा, इन आर काइंड ऑफ बिजनेस, पहले मैं बात करना चाहूँगा कि एज अ ट्राइब कंपनी, एज अ ट्राइब कंसल्टिंग, वो क्या तरीक़ेकार थे जो हमने अपनाए, जिन पे हमने फॉलो किया, वो कौन सा रोड मैप था जिनको हमने फॉलो किया, और दैट एक्चुअली बिकेम अ रीज़न ऑफ आवर सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे। तो उसमें आई वुड से कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वंस दे साइन अप और वी साइन अप विद देम, वी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, it's kind of a lifetime contract. You wouldn't find it everywhere, but in our company, alhamdulillah, our retention rate for the past 10 years is above 98%, which means 98% of the clients, they are still with us. They not only, they're stuck with us. We are stuck with them. They're stuck with us. They wanted to grow. We are helping them to grow. We will helping them grow, and at the same time,
our growth is directly proportional to their growth, so you know we're catching our growth at the same time. So yeah, they're stuck with us, we're stuck with them. We would want to go along for many years to come. तो इसमें हमने अब एक कस्टमर है, क्लाइंट है जो आपके साथ स्टक हो गया है, या यू नो दे आर वर्किंग, दे आर ग्रोइंग विद यू, तो कुछ रीजंस हैं जिसकी बेसिस पे वो कर रहा है, आपके साथ स्टक हुआ है, आपके साथ ग्रो कर रहे हैं. तो वो उन रीजंस में इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि हम नंबर वन डेफिनेटली उनको अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के डिलीवर कर रहे हैं, कुछ वैल्यू एडिशन है जहाँ पे हम कर रहे हैं, और जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो हमारी बहुत अच्छी चली ऑल अक्रॉस तमाम प्रोजेक्ट्स पे. तो ये it definitely matters at the end of the day. Exactly. It matters for the client, for the customers. They would want to stick with you and stuck with you only if they see a potential in you. If there is no potential in you, then why would they waste their time and money on you? No, they would not. And our clients, they are with us for, you know, some of them are for 10 years, some of them are for 8 years, 7 years. And you know, we're forecasting or foreseeing another 10 years, 20 years with them, inshallah. Of course, by adding more customers at the same time. जो चीज़ हमने की वक्त के साथ साथ, वो अपनी जो ग्रोथ है, लाइक आई सेड, हम ट्राइब को बड़े तेज़ी के साथ ग्रो किया, बट दैट्स नॉट इट. हम ट्राइब consulting group of companies भी बनाना चाहते थे. At the same time, we just wanted to make sure we were able to add more brands to our company, to Tribe Consulting group of companies, or Tribe Consulting Private Limited. उस कोशिश में हमने कुछ नए वेंचर्स थे वो स्टार्ट किए. हम पाकिस्तान की रिटेल मार्केट में आए. उससे पहले हमारा एक बहुत ज़्यादा लंबा थॉट प्रोसेस है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के बहुत सारे सेशंस हैं, हमारे बहुत सारे बिजनेस प्लान हैं जो हमने ले आउट किए, मार्केटिंग रिसर्च है, एनालिसिस है. यू नो, वी डिड अ लॉट ऑफ होमवर्क एंड वी लॉन्च्ड two brands in Pakistan retail market. एक फार्मेसी की चेन है, एक सुपरमार्केट की चेन है, and at the same time we wanted to grow ourselves in technology. क्योंकि हम टेक्नोलॉजी ही है जिसको एज अ टूल यूज करते हुए अपना बिजनेस रन कर रहे हैं. हमारे डिफरेंट टूल्स हैं विद इन द टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करें अपने डे टू डे ऑपरेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, उनको एफिशिएंट बनाने के लिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ठीक करने के लिए टेक्नोलॉजी से तो हेल्प ले ही रहे हैं. देन वी डिसाइडेड एंड थॉट व्हाई नॉट टू हैव आवर ओन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी स्पेसिफिकली, जो कि टेक कंपनी हो, जिसको हम इनिशिएट कर सकें, जिसको हम ग्रो कर सकें. एंड देन वी केम अप विद एन आइडिया ऑफ फॉर्मिंग कोडिंग की. इस्लामाबाद से we started off with just 2 developers and 1 VP engineer. Okay. Nasir Saab. So Nasir Saab joined us right away and he hired 2 people and we started working for a customer. Alhamdulillah, we were able to deliver and we did a great job. So he decided to move his entire team from India, of course slowly and gradually, not right away, but he decided to move his entire team, which was working on his product since 2010. You know, his core product since 2010. It was an easy decision for him, but he found out that, you know, this new company he hired to do a smaller job is much more efficient maybe, or you know, they're delivering the results as per their expectations. So they slowly and gradually moved the entire team of the product development to Pakistan. And that was our first ever customer. We still have that customer. And with that, we thought, why not to start developing our own products. हमने उसके ऊपर भी काफ़ी एनालिसिस किए. सो देयर आर सेवरल डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वर कमिंग अप. हमने AI enabled products, basically there are 4 different AI enabled products जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं. और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम बहुत जल्दी उनको लॉन्च करने जा रहे हैं मार्केट में इंशाल्लाह. उससे रिलेटेड जो उसके प्रीरेक्स हैं वो उस पर काम कंप्लीट कर चुके हुए हैं. मोस्ट लाइकली वी वुड बी लॉन्चिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर. AI, सॉरी मैं आपकी बात भी काट रही हूँ यहाँ पे. AI क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है आज के टाइम का, तो AI के बारे में थोड़ा सा एम्फेसाइज करें. AI को हमारा जो फर्स्ट कस्टमर है वो SaaS बेस्ड है, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस.
और इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट एंड वी लव द प्रोडक्ट, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन वी रियली वांटेड टू गेट इनटू द एआई, वी रियली वांटेड टू डू समथिंग इन एआई। तो फिर हमने जो अपनी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू की, तो हम ये जिस प्रोडक्ट की पहले मैंने आपसे बात की तो कस्टमर की प्रोडक्ट है, लेकिन हम अपनी कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हम जब अपनी प्रोडक्ट्स बनाने की बात की तो हमारा कुछ थॉट प्रोसेस ऐसा चलता है कि जिसमें हम बेसिकली पेन पॉइंट्स तो हर कोई देखता है, हम भी देखते हैं, गैप्स सब देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें उसके ऊपर एनालिसिस किया, देखा, और एआई कहाँ पे प्रोसेसेस को मज़ीद स्ट्रीमलाइन करने में और आसान करने में और यूज़र फ्रेंडली बनाने में आसान काम कर सकता है, और उसके ऊपर काम करते हुए हमारी जो बाकी 3 प्रोडक्ट्स हैं वो एआई एनेबल्ड हैं। एंड विद दैट वी आर लॉन्चिंग another company in the US specifically for the AI projects. And we have a couple of customers जिनके साथ हम MOU sign कर चुके हुए हैं, and we are going to go big with them inshallah, and by the end of the year, during the year, in fact the entire year, it is just going to be super crazily busy and exciting at the same time. So yeah, AI से related बहुत सारे projects जिनको हम फोकस किए हुए हैं, we would be inshallah bringing them to Pakistan for our people here. यहाँ पे थोड़ा सा टैलेंट को लेके इस साइड पे, टेक वाली साइड पे थोड़े से चैलेंजेस, हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपना लेवल ऑफ एजुकेशन जो है उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वी आर एसोसिएटेड विद पाशा इज़ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन, एक बॉडी जो बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो पाशा ने काफ़ी इसके मतलब सजेशंस भी दिए हैं। पाशा कंपनीज जो बाकी टेक कंपनीज हैं, दे हैव बीन डूइंग रियली ग्रेट जॉब, उन्होंने बहुत सारी सजेशंस दी हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं हम शायद अपने एजुकेशनल सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर कर पाएँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I'll explain it to you why, because when you look at the demand, then there is a huge demand. There is actually a huge demand. बट अगर हम उस डिमांड को पूरा करने के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए यही चाहिए होता है ना, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड तो है, आपके पास सप्लाई है कि नहीं, ये मैटर करती है। जब हम सप्लाई की तरफ देखते हैं तो हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर वैसी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, या वो उनका स्किल सेट वैसे डेवलप नहीं हुआ होता। बहुत सारे मेरी तरह के लोग बैक बेंचर्स होते हैं जो कि देयर जस्ट अचीव कर चुके हैं लाइफ में ये कह सकते हैं। लेकिन जो अगर आपकी यूनिवर्सिटी से एक क्लास से 2 या एक गोल्ड मेडलिस्ट निकलता है और एक उसके बाद का सेकंड 3.7, 3.8, 3.9 जीपीए वाला लगता है, तो क्या सारी जॉब्स उनके लिए हैं? बाकियों को जो जॉब्स जितनी मौजूद हैं या जो काम मौजूद है, आई एम बीइंग ऑनेस्ट मत, इस टाइम पे जो डिमांड है जो मौजूद है, उसमें यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सबको जॉब मिल सकती है। सब काम किसी ना किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। जस्ट दैट उनको यूनिवर्सिटी में रहते हुए कुछ इंप्रूवमेंट्स अपने अंदर लेकर आनी है। ऑफकोर्स उनके जो टीचर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी का तरीक़ेकार है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और फिर मेरी तरह के बैक बेंचर्स भी कुछ सीख जाएंगे और आगे जा सकते हैं। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात की और बहुत मोटिवेशनल बात है फॉर इंस्टीट्यूशंस कि वो जो है वो आगे आएँ और अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से। दे शुड, बिकॉज हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि हम अगर मैं सिर्फ टेक की बात कर रहा हूँ भी, अगर हम टेक की बात करते हैं और हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आगे बढ़ रही है, हम एआई के ऊपर अब फोकस किए हुए, हम उसके अंदर जा रहे हैं, तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया तो बढ़ रही है, हम थोड़ा स्लो है, हमें तेज़ होना पड़ेगा, लेकिन दुनिया तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अभी तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि वो कैसे बढ़ रहे हैं, फिर हम अपने आप को समझ रहे हैं कि ठीक है, इफ़ वी रियली नीड टू पेस अप, व्हाट डू वी नीड टू डू। बट एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटीज़ को जो है, हमारे एजुकेशनल सिस्टम को और हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बड़ा सोचना और समझना पड़ेगा कि वो जो 4 साल एक बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं, एक डिग्री के ऊपर 4 साल लगा रहे हैं, तो वो कम से कम उसको ये चीज़ समझाएं कि जब वो निकलेगा यूनिवर्सिटी से पास आउट होके, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होंगे, लेकिन उन ऑप्शंस को तभी ले पाएगा जब उन 4 साल में, फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो जावा की क्लास ले रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट की क्लास ले रहे हैं, या कोई भी एनीथिंग समथिंग लाइक दैट, कोई भी इस तरह की कोई लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं। अगर वो लैंग्वेज पढ़ाने से पहले आते साथ वाइट बोर्ड पे लिखने से बेहतर है, या कुछ भी अपना ज़ाती इंट्रोडक्शन जो वो दे देते हैं 1 घंटे का कि मैं फ़लाँ जगह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, उसकी जगह अगर वो इंटरेस्ट डेवलप करें स्टूडेंट का राइट देन एंड देयर कि बेटा ये जो अभी आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसकी मार्केट के अंदर ये डिमांड है, ये करंट इस टाइम पे इसका सैलरी स्ट्रक्चर ये चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी ये डिमांड है।
इसको अगर आप समझ लेंगे, सही तरीके से पढ़ लेंगे, तो जो आप आगे पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप दोनों को लिंक कर सकेंगे। यूनिवर्सिटीज़ को ये समझना होगा, उनको ये बताना होगा स्टूडेंट्स को फ्रॉम द डे वन कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने से मुराद पढ़ने से यानी कॉन्सेप्ट को समझने से और अपने दिमाग उसके अंदर अपनी एक इंटरेस्ट लेवल डेवलप करने से कल को क्या फ़ायदा हो सकता है। द पर्सन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर टुमारो, बिकॉज उसने स्किल के ऊपर मास्टर कर लिया है जब वो पढ़ रहा है और उसने अपना रिसर्च का जो दायरा है उसको वसी किया है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ कपल ऑफ बुक्स बट प्रोबेबली यू वेंट एक्स्ट्रा माइल टू लर्न मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा दिए क्योंकि अब उसको बता दिया, उसके टीचर ने बता दिया है कि बेटा आप ये पढ़ लो, सही तरीके से पढ़ लो, सही कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लो, आपको कल इसका फ़ायदा होगा और हो सकता है आज की तारीख में भी डेफिनेटली होगा। आप जब निकलोगे आपको इसका फ़ायदा आगे नज़र आएगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं इसको क्विकली इस तरीके से समराइज़ करता हूँ। एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में से टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट एक होता है और उसके नीचे उसके साथ के 4-5-6 बंदे, तो पहली 2 लाइन्स जो होती हैं ना, पढ़े लिखे अच्छे लाइक बच्चों की होती हैं। पीछे वाली जो लाइंस है ना, जो बैकबेंचर्स हैं, वो उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा कभी भी। दे आर देयर फॉर फन राइट नाउ, दे थिंक दैट दे आर देयर फॉर फन। अभी तो उनका ये छोटा बच्चों वाला दिमाग है, बच्चे हैं अभी, हम भी बच्चे थे तो हमारा भी ये दिमाग था कि अभी तो वी आर देयर जस्ट फॉर द फन, हमें क्रिकेट खेलना है, इसके बाद जाके मे बी बाइक्स पे हमने पिंडी बॉय बन जाना है और मरी निकल जाना है, ये जहन में होता है। लेकिन अगर उसको ये समझ में आ जाए कि उन्हीं बैक बेंचर्स में मेरे जैसे लोग बैठे होते हैं जिन्होंने एट द सेम टाइम अपनी पढ़ाई को भी फंड करना है, अपने घर को भी देखना है, फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं, बहुत सारे लोग हैं ना फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं, और अगर आप वो क्लिक कर जाए, उसको ये बात समझ में आ जाए कि यार ये अब अगर मैं थोड़ा सा बात तो समझ में आ रही है, ठीक है, बाकी फन एंड अदर एक्टिविटीज़ वो अपनी जगह पे रहेंगी, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे इस सब्जेक्ट को पकड़ के इसके ऊपर अपना रिसर्च का दायरा वसी कर लूँ और मास्टर कर लूँ, it is definitely going to help because my teacher told me कि अगर मैं इस पर मास्टर कर लूँ तो मैं कल को या तो एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, खुद की कंपनी का मालिक बन सकता हूँ, या फिर मैं किसी अच्छी बड़ी कंपनी में, हमारे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं टेक में, नेटसोल सिस्टम्स हैं, देयर आर लॉट मोर अदर्स जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करें, उन जैसी कंपनीज में राइट अवे शायद मैं जॉब के लिए भी एलिजिबल होऊंगा जहाँ से मेरा करियर बूस्ट कर सकता है। हाँ, ये नहीं हमने सिखाना कि बेटा पढ़ लोगे तो दुबई में अच्छा मिलेगा, कंपनी में ब्रेन ट्रेनिंग करना। उन बच्चों को ये समझाना है कि यहाँ पे आप जो ना स्ट्रगल भी समझानी है कि आपने इन स्ट्रगल को यहीं पे आपको अच्छी चीज मिलेगी। ऑफ कोर्स अगर हम यही चीज समझाएंगे तो बेहतर है। ऑफ कोर्स वो तो उसका डिसीजन है, उसको ब्रेन ड्रेन के पूल के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करना है और उसको भी निकल जाना है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेयरएवर। गुड फॉर हिम बट नॉट गुड फॉर द कंट्री एज अ होल एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, ये तो थी काम की बात है। एज अ सीईओ आप क्या समझते हैं, कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं, अपना हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? Okay, this is an interesting question, specifically for me, because I'll explain it to you later. इसी में थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ, and then you would say yes, this is really interesting. Normally जो entrepreneurs होते हैं, they are super busy और होना भी चाहिए. They are like working 24 hours a day, 7 days a week. They're working on their business. बहुत सारी चीज़ें जिनको वो देख रहे हैं, ग्रोथ को देख रहे हैं, प्लानिंग को देख रहे हैं, एग्जीक्यूशन को देख रहे हैं, फाइनेंसिस को देख रहे हैं, मार्केटिंग को देख रहे हैं, सेल्स को देख रहे हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड. कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो बहुत बिजी है, सुपर बिजी है, इसमें कोई शक नहीं है. एंड इट इज सेम अराउंड द वर्ल्ड, हर जगह पे ऐसा ही है. तो इसमें इन योर केस बट यू आर रनिंग मल्टीपल कंपनीज. In my case, I am alhamdulillah running multiple shows right now, multiple ventures. पाकिस्तान के अंदर दो रिटेल चेन्स हैं, मतलब दो निशेस हैं जिनकी रिटेल चेन्स हैं. इसके अलावा टेक कंपनी है, ट्राइब कंसल्टिंग है, ट्राइब कंसल्टिंग ग्रो कर रहा है, कोडिंग की माशाल्लाह ग्रो कर रहा है. रिटेल के अंदर हमने ग्रोथ देखी है, वो हमने करनी है. फिर बाकी जो यूएस के अंदर हैं और नए वेंचर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग वेंचर्स हैं वो भी, और जो नए वेंचर्स हैं, हमारे कुछ एआई के वेंचर्स हैं वो, और कुछ हमारी प्लान किया है. हमने कुछ नए वेंचर्स लॉन्च करने के बारे में हम सोच रहे हैं. बाय द एंड ऑफ द सेकंड क्वार्टर वी शुड बी एबल टू लॉन्च येट अनदर वन, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर अनदर वन. सो वी आर ऑलवेज थिंकिंग ऑन दोस लाइंस. ये सब कुछ मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट भी हो रहा है. इस सब के साथ कैसे आप मैनेज कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ, या मेरी पर्सनल लाइफ कैसे कर रहे हैं इस तरीके की वर्क लाइफ? नेटफ्लिक्स की कोई वेब सीरीज मैंने देखी हुई है,
कोई नहीं छोड़ी। आई मीन मेरा टीवी टाइम Wow. पूरा देता हूँ मैं। मूवीज़ एनीथिंग वो मैं देख रहा हूँ। मैं अपना एक हिस्ट्री का काइंड ऑफ तालिब इल्म हूँ, तो मैं हिस्ट्री के ऊपर बुक्स और कुछ रिसर्च है वो मैं अपने फ्री टाइम में करता रहता हूँ, करते पढ़ते रहते रहता हूँ। जो मेरे बच्चे हैं, मैं अगर उनसे स्टार्ट लूँ तो आई डू लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स। मैं घर में बहुत सारे काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कुकिंग करते हैं आप? कुकिंग करता हूँ, खाना बनाता हूँ, Wow. आटा गूंथता हूँ। आई लव डूइंग दैट। सुबह बच्चों को उठाने से लेकर तैयार करने तक उनका एक तो ब्रेकफास्ट होता है जो उनको करके जाना है, और एक वो जो उनको स्कूल जाके खाना है, लंच। तो ये दोनों भी दो मुख्तलिफ मेहनतें हैं, क्योंकि बच्चों को ब्रेकफास्ट में कुछ और चाहिए, लंच में कुछ और चाहिए। तो ये भी मैं करता हूँ साथ साथ उनको स्कूल के लिए तैयार करके। बाकी उसके बाद मेरी I think a बेगम lot बैठी of होती है। people can take inspiration from you. आई लव डूइंग इट। आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके साथ काम मैनेज हो रहा है, मेरा काम में मैनेज कर रहा हूँ। उसके साथ अगर मुझे सो आई नीड टू बी व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर पाता हूँ। ट्रैवलिंग भी है। 4 दिन हम लोग डाइन आउट करते हैं हफ्ते में मिनिमम। हम तो डाइन आउट का मतलब ये है कि आप निकलें, पहले आप रेस्टोरेंट सोचें, उसको शॉर्ट लिस्ट करें, इसमें आपको टाइम लगता है, फिर आप पहुँचें, खाना खाएं, वापस आएंगे, नो टेक्स टाइम। Yes. लेकिन ये हम 4 दिन करते हैं, हर हफ्ते Very में nice, कम से कम very 4 nice. दिन ये करते हैं। मेरे बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, मैंने उनको खुद से बोला हुआ कि बेटा आपको ये करना है, और उसमें मैं खुद से इन्वेस्ट करता हूँ अपना टाइम। उनके साथ जाता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ। जरा मेरी छोटी वाली जिमनास्टिक्स चीज़ सुपरस्टार माशाल्लाह। Cute. तो वो उसको मैं जिमनास्टिक की क्लासेस हैं वो दिलवाने जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ 2 से 2.5 घंटे, अपना काम मैं कर रहा होता हूँ। मेरे पास या तो लैपटॉप होगा या मेरा फ़ोन होगा, मैं कुछ ना कुछ अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम But टाइम at least you are there मैं with them. उनको जो टाइम देना है वो मैं पूरा दे रहा हूँ। तो मैं मेरी फैमिली Very को जो good टाइम thing, मिलना चाहिए, मेरा सोशल सर्कल पूरा है। कोई भी मेरे जो करीब दोस्त हैं जो सोशल सर्कल में, वो ये नहीं कह सकता कि शायद मैंने उनको टाइम नहीं दिया या मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कोई शिकायत नहीं आई? कोई शिकायत नहीं है। मेरे जो फैमिली वाकंड में उनको, जो मेरी फैमिली दुबई में उनको, जो मेरे इन-लॉज हैं उनको, जो मेरे दोस्त हैं, एवरीथिंग, ये सब अल्लाह के फजल से सब मैनेज हो रहा है, अलॉन्ग विद माई ओन थिंग। जिसमें जैसा मैंने आपको बताया, मैं कोई भी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है या कोई भी OTT चैनल है, एनी यू नेम एनी चैनल, नेम एनी सीरीज़, अगर उसकी IMDb रेटिंग 8+ है, मैंने देख ली है और आते साथ देख ली है। स्पोर्ट्स का शौक है? कोई क्रिकेट मैच नहीं छोड़ता मैं, पाकिस्तान का ख़ास तौर पे, और अगर कोई और भी मैच चले, जिस तरह अभी रिसेंटली सीरीज़ कंक्लूड हुई है वेस्ट इंडीज़ की और ऑस्ट्रेलिया की, मैंने वो भी देखी है। इंडिया की इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट मैच चल रहे हैं, मैंने वो भी देखे हैं। पाकिस्तान की तो मैं कोई नहीं छोड़ता। अभी PSL आएगा, वो भी देखूंगा, कोशिश करूंगा मैं पाकिस्तान आऊँ, स्टेडियम में भी जाके 1-2 मैचेस देख लूँ। अगर दुबई में कोई मैच होगा तो मैं वो भी देखूंगा। जब ये इनमें से कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, लाइव कुछ नहीं अवेलेबल, तो फिर मैं आर्काइव में चला जाता हूँ कि पहले क्या क्या कौन कौन से मैचेस गुजरे, तो वो मेरे टीवी टाइम के अंदर वो शामिल होता है, तो मैं उधर से भी मैचेस देख रहा होता हूँ। इसके अलावा आई गो एंड प्ले स्नूकर एंड चेस, ये और 2-3 एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने रखी हुई हैं। चेस ओनली वीकेंड्स, स्नूकर इज़ लाइक कपल ऑफ टाइम्स इन अ वीक, तो वहाँ पे भी मैं टाइम दे रहा होता हूँ। स्पोर्ट्स को जो स्पोर्ट्स मैं खेलता हूँ उनको भी मैं टाइम दे रहा होता हूँ। बट एट द सेम टाइम जो काम है, जो बिजनेसेस हैं, जो उसके एक्सपेंशन हैं, जो ग्रोथ हैं, एवरीथिंग इज देयर। Everything is there. एवरीथिंग इज देयर, वो रनिंग स्मूथली, और उसी पेस के साथ, जिस पेस के साथ हमने जाना है, और हमारी पेस हल्की नहीं है। ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, amazingly हमारी आप पेस जो है काफ़ी इसको तेज है। हम maintain कर रहे हैं। जस्ट कंप्लीटेड 10 years in the business। अभी हमें 10 साल हुए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और जहाँ पे अभी हम पहुँचे, और अगले 10 साल में जहाँ पे हमने पहुँचना है वो ठीक है, अल्लाह के फजल से मैनेज हो जाता है, हम कर जाते हैं। Okay, looking ahead, what are your goals and aspirations for the future of your companies, and how do you plan to achieve them? I did mention it earlier. We have a vision to grow and grow quickly. हमें growth जो है उसको make sure करना है कि वो we're always achieving them, we're always getting there. Simple vision है, not a rocket science. We just wanted to keep on doing whatever we are doing right now. Just keep on adding value and keep on adding more ventures. At the end of the day, each of those ventures that we are adding is going to bring in a lot of jobs for our people here in Pakistan. That's the goal. That's the idea. We need to be able to bring in a lot of jobs for our people here in Pakistan. They need it.
And for that, yes, if we are starting another venture in the US or maybe in another country, उसका सारा back office support, उससे related everything, there are a lot of things involved. There are a lot of components involved. तो सारे components हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं. इससे ये कि आज अगर हमारे पास 1500 से 1800 के करीब फैमिलीज इसलिए क्योंकि एक फ़र्द वाहिद जो है ब्रेड विनर है उस पूरी फैमिली का, तो आई वुड कॉल इट अ फैमिली. इस 1500-1800 लोग इस ट्राइब का हिस्सा हैं, जो ट्राइब हमारा ट्राइब है उसका हिस्सा है. तो हम इसके अंदर बहुत सारे और लोग ऐड करना चाहेंगे यहीं से, पाकिस्तान से. उसके लिए ये जो वेंचर्स हैं हमारे, उनका सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, उनका कामयाब होना बहुत ज़रूरी है. कुछ कामयाब हो चुके हैं, कुछ अपने रास्ते में, कुछ लॉन्च की करीबन लॉन्च पैड पे मौजूद है, हमने लॉन्च करना है इंशाल्लाह ताला. तो हम वी आर वेरी डिटरमिन्ड, वी आर वेरी वेरी फोकस्ड always. The team that we have is exceptional. I mean, you talk about yourself, you talk about and anyone else. Mateen Akhtar Mughal running the show, or Hanan from Lahore, Saqib Ilyas. I'm sorry, I cannot name people right now because the list would go on and on. Rizwan, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिजवान जिस तरीके से सारी आईटी को संभाले बैठे हैं, तो ये जहाँ पे ये आप लोग जिस तरीके से अपने काम को बेहतर करते जा रहे हैं और उससे वैल्यू एडिशन करते जा रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग अस अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव अकॉर्डिंग टू आवर विजन, सो दैट वी आर एबल टू क्रिएट अ लॉट मोर जॉब्स. लाइक ऑफ द रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था एक कंपनी जिसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं इन अ फ्यू मंथ्स टाइम. एंड इफ़ दैट गो सक्सेसफुल, यानी कि उस पर जो आज मेहनत यहाँ से हो रही है और वो सक्सेसफुल हो जाती है, कंपनी इज़ इन द US, बिजनेस इन द US, लेकिन उसके करीब 100+ एम्प्लॉयमेंट जो है हम पाकिस्तान के अंदर क्रिएट कर रहे होंगे. वो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लोगों को मिल रही होंगी, यहाँ पे वो बढ़ रही होंगी. फिर पीपल फ्राम हियर इन पाकिस्तान, व्हेन दे वर्क विद समबडी in a first world country, they call it a first world country, the US, of course, technology giant and tech सब जानते हैं, सब समझते हैं. तो जब आप उनके साथ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ काम कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली जो लेवल ऑफ एवरीथिंग, स्किल्स, यू नेम इट, वट एवर इट टेक्स, वो सब एलिवेट हो जाता है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है. आपकी जो टेक्नोलॉजी के साथ जिसे कहते हैं पहचान है, वो बढ़ जाती है, लिमिटेड नहीं रहती बल्कि काफ़ी एक्सपैंड कर जाती है. सो दैट्स द विजन. एट द एंड ऑफ द डे वी शुड बी एबल टू लाइक आई सेड, वी आर डिटरमिन्ड, वी आर वेरी फोकस्ड. एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे के सारे वेंचर जो हम लॉन्च करते जा रहे हैं, वो अपने टाइम पे अपना टाइम लेके सेटल डाउन होते जा रहे हैं और वो ग्रो भी कर रहे हैं. So that's the idea. Yeah, the thought process would continue, and it would continue until, I don't know, I'm alive until then maybe, but it would continue. It would go on, and we should be able to, make this company a brand that you and everyone else is going to be proud of. It is definitely going to be proud of it tomorrow, inshallah ta'ala. Inshallah. Last में कोई message for youth? यूथ जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर मौजूद है, सबसे अच्छा वही सोच रहे हैं. जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तो हम अपने वालिदैन से अच्छा सोचते थे. हम समझते हैं अच्छा तो नहीं सोच सकते थे, वालिदैन से अच्छा कोई नहीं सोच सकता. मैं टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जब हम छोटे थे तो हम उनसे आगे थे, ठीक है. आज हमसे हमारे बच्चे आगे हैं, वो ज़्यादा तेज़ हैं, वो आजकल की टेक्नोलॉजी को वो ज़्यादा अच्छे अडॉप्ट किए बैठे हैं. या बिल्कुल, तो यूथ जो है उसमें ज़्यादा एनर्जी है, उसके अंदर एक तजस्सुस है, उसको रिसर्च करनी है, उसको सोचना है. अगर वो समझे उसको करना क्या है, तो यूथ के लिए ये कि जितना जल्दी वो अपने को सेल्फ सफिशिएंट कर सकते हैं वो करें. बाकी देयर इज़ द इंटायर लाइफ, पूरी ज़िंदगी पड़ी है जिसमें दे वुड हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम टू हैव फन, टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू इन देयर लाइफ. बट फॉर नाउ, सिंस वो अपनी यूनिवर्सिटी में अगर हैं और उनको आगे बढ़ना है, तो वो आज से सोचें कि उनको क्या ऐसा करना है, वो अपने अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स डेवलप करें, या जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के अंदर वो क्या किस चीज़ के ऊपर फोकस करें जो उनको कल फ़ायदा दें. ये तो होगी बात स्टूडेंट्स की. स्टूडेंट्स के बाद वो बच्चे जो कि अब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मार्केट के अंदर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, और तो अपने काम जो वो काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर वो वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे, it is not going to help them getting a pay raise maybe from any company, but it would help them
improving their knowledge base, that they can sell tomorrow to another company, to another organization for a better pay scale. Maybe एक नॉलेज आपने बढ़ा लिया ना, एक्सपीरियंस बढ़ा लिया, आप सिमिलर कंपनी को ग्रो करा सकते हैं, या आप किसी और कंपनी में जिस कंपनी के अंदर चाह है बढ़ने की, आगे ग्रो करने की, आप उसको हेल्प कर सकते हैं, स्किल सेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप देयर इज कभी भी कोई भी दिन एज ऐसी नहीं जो जिसमें आप कहेंगे लर्निंग नहीं है, लर्निंग नो, नथिंग लाइक दैट हैपेंड। कोडिंग की हमने जब स्टार्ट किया था तो उससे पहले मैंने पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स खुद किया था। ड्यूरिंग द कोविड मैंने 3 महीने लगा के फुल स्टैक डेवलपमेंट का, ताहिर ने 21 सर्टिफिकेशंस उनके पास, मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, ऑनलाइन मार्केटिंग की, इसके अलावा फुल स्टैक डेवलपमेंट भी उन्होंने किया खुद से। उनको किसी ने नहीं बोला था, ना मुझे बोला था। अब्दुल मुकीत ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे। ही वॉज नॉट अ कंप्यूटर ग्रेजुएट बट लुक एट हिज वर्क। वो तो ऐसे ऐसे काम करता है कि बंदा परेशान हो जाता है कि कैसे बना लिया आपने ये प्रोग्राम, कैसे कर लिया। तो उसने भी अपने लर्निंग का प्रोसेस नहीं रोका, ठीक है। लाइक आई सेड, अभी भी मैं भी यही कर रहा होता हूँ। जो मेरा मी टाइम होता है उसके अंदर, इफ़ आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स, एनी न्यू कंटेंट ऑन नेटफ्लिक्स, देन माय नेक्स्ट प्रेफरेंस वुड बी इज़ टू डू अ बिट ऑफ मोर रिसर्च। मज़ीद कोई चीज़ जो मैं सीख सकता हूँ, नॉलेज में इजाफा हो सकता है। हिस्ट्री तो बताती है, सिखाती है, समझाती है, वो तो मैं करता हूँ। लेकिन आजकल क्या चल रहा है उसमें मैं अगर अपने नॉलेज बेस में इजाफा कर सकूँ तो मैं करना चाहूँगा आज भी। तो जो यूथ है वो तो एनर्जी, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। आई मीन दे हैव 48 आवर्स इन अ डे, they have all the time in the world. They just need to be able to make full use of it. Thank you so much मौदूद, thank you for your time. आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। Thank you so much. Thank you so much, Nadia.